हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल हियर। यदि आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी दबाएं सब्सक्राइब बटन को। इसके बगल में दिए गए बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारे सारे नए वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिलें। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, इस लॉकडाउन में काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं बन रहे थे मैथमेटिक्स क्लास के। और अभी पिछले दिनों हमने क्लास 10th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की पहली एक्सरसाइज 2.1 अपलोड किया था। हमें उम्मीद है आप लोगों ने देखा होगा और आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो उसी कड़ी में इस लॉकडाउन में हम आज दूसरी चैप्टर की एक्सरसाइज 2.2 रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल स्टडी करेंगे। तो लेट अस सी अबाउट दिस टॉपिक। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। सपोज हम लोग अगर लीनियर पॉलिनोमियल लें ax प्लस बी, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है और अगर हमें इसकी जीरोस पता करने हो तो सबसे पहला काम लेट ax प्लस बी इक्वल टू 0। सो यू कैन रीराइट इट एज ax इक्वल टू माइनस बी। So value of x will come minus b upon a. You can see what is b. In this linear polynomial you can see what is a. In place of a you can write coefficient of x. And what is b? b is constant term, and the a is coefficient of x. So you can see the relation between zeros. You can see this one is 0 of this polynomial and it can be expressed in the form of coefficient and constant term. So this one is for the linear polynomial. Later on I will take some quadratic polynomials. You know, for quadratic polynomial you can see ax square plus bx plus c. You can see this one is a quadratic polynomial. So it is here you can see three variables are used in linear polynomial. A and b are real numbers here, and a should not equal to 0. Here you can see a, b and c are reals and a should not equal to 0. Now we will study for the quadratic polynomial. Here you can see what is a. A stands for coefficient of x square, and the b is coefficient of x,
and C is constant term. Suppose alpha and beta are zeros of quadratic polynomial Px, then sum of zeros equal to minus b upon a, or you can say sum of zeros means alpha plus beta. This one can be written as minus. See here the meaning of b. The b is coefficient of x. So we will write here coefficient of x upon, in place of a we can write coefficient of x square. This is the relation. These are the zeros and these are the coefficients. So you can see this one relation, another relation, product. You can write it as product of zeros. Equal to alpha into beta, and alpha into beta is equal to c upon a. Later on I will take one example and I will verify it after finding the zeros. In this case you can see in place of c you may write constant term upon, in place of a we can write coefficient of x square. So it is relation between zeros and coefficient of polynomial. So this concept I will clear by taking one example. See one example. Find the zeros of quadratic polynomial x square plus 7x plus 10 and verify the relationship between zeros and coefficients. For doing this question, you just see what we will do. First of all, copy down the polynomial given here. First of all, we will find the zeros. For finding the zeros, you can see it is a trinomial, quadratic trinomial. We will factorize using splitting middle term method studied in class 9th. So you can see here coefficient is 1, here 10, 10 1 are 10. So 10 can be further factorized like 5 2 are 10 and 5 and 2 added, so we will get 7. So we will factorize by splitting this term into two terms. One term is 5x, another term is 2x plus 10. Now making two groups, दो ग्रुप बना लेंगे और कॉमन लेंगे x, तो x प्लस 5, और अगर 2 को कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 5। आगे देखिए, अगर इनको फिर से कॉमन लिया जाए x प्लस 5 तो दूसरे ब्रैकेट में मिलेगा x प्लस 2।
This is the polynomial Px. Now for finding the zeros of this polynomial, one by one bracket you will make equal to 0. इन दोनों को जीरो करके हम दो जीरोस पता कर सकते हैं. x plus 5 is equal to 0. Then you will get the value of x is equal to minus 5. If another bracket x plus 2 is equal to 0, then x is equal to minus 2. You know student, these two values, जो दो values हमें मिली है, यही दो values zeros of the polynomial है. Here minus 5 and minus 2 are two zeros. और अभी हमने एक्सप्लेन किया था कि जो दो जीरोस होते हैं उनमें से एक जीरो को बोलते हैं अल्फा और दूसरे जीरो को बोलते हैं बीटा. तो हम देखेंगे यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू माइनस 5 and beta is equal to minus 2. Also you can note from the equation, from the polynomial you can write the value of a also. A is the coefficient of x square. Here coefficient of x square is 1 and coefficient of x is 7. That is b. The value of b is 7 and constant term is plus 10. C is 10. Now I am going to verify. So first of all I will find the sum of zeros. One zero is alpha, another zero is beta. So you can see in place of alpha minus 5, in place of beta minus 2, you can write it as minus 7. Now see how we can make the relation. Here you can see it is b is 7. So you can write it as minus 7 upon 1 also. Why? So that in place of 7 you can write b. And in place of 1 you can write a. So this is the alpha plus beta value minus b upon a, or you can write it here in term of coefficient. B is coefficient of x and a is coefficient of x square. So this is one relation. Now one more relation as product. Now product of zeros. You can see product is alpha into beta. Therefore you can see alpha into beta is equal to minus 5 into minus 2. So when you will multiply you will get 10 and you see the coefficients a, b, c. These are the coefficient of the polynomial. So what is 10? You can see 10 can be written as 10 upon 1. So in place of 10 we can write c, in place of 1 we can write a. So this is the product of the two zeros, and in the last we will write one sentence. Hence
relationship between relationship between zeros and coefficients is verified. तो इस तरह से ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ और इसी पैटर्न पर एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हम कर सकते हैं। तो लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are -3 and 2 respectively. For doing such type of questions, you can apply the formula polynomial px is equal to k x square minus sum of zeros into x plus product of zeros. We can apply this formula. Here you can see k is any arbitrary constant. Value of k is any real number, but k should not equal to 0. Other than 0, any polynomial. Actually, what is happening, if two zeros are given, you can make infinitely many quadratic polynomials. So only depend on the value of k. Suppose you want to write 3 polynomials having same zeros. So put the value of k once 1, second time 2 and third time 3. So in this way you can get 3 polynomials. Suppose so many polynomials you can get by substituting the value of k. So here I would like to write the answer of this question k x square minus sum of zeros. In this question you can see here sum is given, sum is -3 and product is given 2. So substituting these two values in place of sum of zeros we will put -3 into x plus in place of product you will write 2. Now see, if you are putting here k is equal to 1, so required polynomial you can get x square minus product plus 3x plus 2. This is your answer. One more method is there for finding this one. You can apply also. But here it is simplest. You may use it. Same question you can do using another method. You can see here sum of zeros is equal to given -3. You know sum of zeros, if alpha and beta are two zeros, so alpha plus beta is equal to -3. And you know alpha plus beta is minus b upon a. This is given -3. Now see one more thing. Product of zeros, you know, here given 2.
and product is alpha into beta. Alpha into beta is product equal to 2, and alpha into beta can be written as C upon A, that is 2. From here you can solve these two one. Suppose you are taking A is equal to 1. You can get infinitely many values of A, B, C, and so many polynomials you may write. So among them, one polynomial I am taking here. Suppose A is equal to, I am taking 1. Putting here, so the value of B minus B upon 1 is equal to minus 3. So the value of B will be 3. And now again putting value here as 1. So value of C is 2. Now putting these values A, B, C in general form of the quadratic polynomial. You know general form of quadratic required polynomial: ax square plus bx plus c. Now you can substitute here value to get one quadratic polynomial. So in place of a we can write 1 into x square plus b is 3x plus c is equal to 2. So you can simplify, so x square plus 3x plus 2, this one is your required answer. सपोज आपको और दूसरे पॉलिनोमियल लिखना है जिसके जीरोज यही हो जो यहाँ पर दिए हैं, तो यहाँ 2 से इंटू कर दो हर एक टर्म को, क्योंकि फॉर्मूला आपको बताया गया था k इंटू, तो 2 4 और लिखना हो तो 3 से इंटू कर लो, 4 से इंटू कर लो हर एक टर्म को। तो इसी जीरोज वाले आपको बहुत सारे पॉलिनोमियल मिल सकते हैं। अब हम आपको हिंट, अब आप इस पर बेस्ड, ये जो क्वेश्चन हमने अभी आपको बताया इस पर बेस्ड एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 इसी पर बेस्ड है। यू कैन डू ऑल दीज क्वेश्चंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, इस क्वेश्चन में भी हमको इसके जीरोज पता करने हैं और साथ में हमको रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड पॉलिनोमियल वेरीफाई भी करना है। तो ये दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है, इसको भी हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज करेंगे सॉल्यूशन। तो सबसे पहला काम, इस पॉलिनोमियल को कॉपी डाउन कर लो, उतार लो, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। नाउ मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलता है, 3 इंटू माइनस 4 दैट इज माइनस 12, और माइनस 12 के फिर से फैक्टराइजेशन करें क्योंकि हमें इस टर्म को स्प्लिट करना है, तो माइनस 4 इंटू 3 दैट इज माइनस 12, और माइनस 4 प्लस 3 अगर करें तो माइनस 1। ये माइनस 1 यहाँ पर कॉफिशिएंट है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। अब दो के पेयर बना करके कॉमन ले लें x, तो मिलेगा 3x माइनस 4 प्लस यहाँ पर 1 कॉमन ले तो 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 एंड x प्लस 1। अब इस पॉलिनोमियल के जीरोस पता करना है तो एक एक फैक्टर को जीरो के इक्वल करते जाएंगे। लेट या इफ लिख सकते हैं इक्वल टू 4, इफ 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 4/3, और दूसरा वाले ब्रैकेट को अगर हम 0 करें, इफ x प्लस 1 इक्वल टू 0 देन
x इक्वल टू -1। तो आपने देखा दो जीरोस, अल्फा कितना मिला? द वैल्यू ऑफ अल्फा इज 4/3 and value of beta is -1. From this polynomial you can write the coefficients. The value of a is 3. The value of b is -1 and the value of c is -4. तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि दो जीरोस हमको मालूम हो गए हैं। ये पहला काम हो गया कि फाइंड द जीरोस। अब हमको रिलेशनशिप बताना है, तो रिलेशनशिप के लिए हमको करना क्या होता है? सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता करना होगा। तो लेट अस सी हाउ टू वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। तो सबसे पहला काम अल्फा प्लस बीटा पता कर ले। अल्फा की वैल्यू आपने देखा कितना है यहाँ पर? अल्फा की वैल्यू 4/3 और बीटा की वैल्यू -1। तो यहाँ प्लस करेंगे -1, इसको सिंप्लीफाई करें तो 4/3 -1 सिंप्लीफाई कर लो 3, 4 - 3 कितना मिलेगा? 1/3 अल्फा प्लस बीटा। 1/3 को अगर हम देखें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं -1/3। तो इसकी जगह पे लिखेंगे -b/8। अब हम पता करते हैं इसके प्लेस पे आप जो डिटेल में लिखना हो तो यहाँ लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब हम प्रोडक्ट पता करेंगे। लेट अस सी द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अल्फा इंटू बीटा। 1 अल्फा इज -4/3 multiplied with -1 अल्टीमेटली -4/3। -4 जरा देखें एबीसी में क्या है। एबीसी में आप ध्यान से देखिए, द वैल्यू ऑफ सी इज -4, द वैल्यू ऑफ ए इज 3, तो 3 के प्लेस पे ए लिख लो। अब हम क्या करेंगे? अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है इसको लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म, और ए के प्लेस पे लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। और लास्ट में लिखना ना भूलेंगे सेंटेंस hence relationship between zeros and coefficients is verified। ये लास्ट में यहाँ लिखना पड़ेगा जैसे पिछली वाले एग्जाम्पल में हमने लिखा है। क्वेश्चन 1, फिफ्थ पार्ट, t² - 15। ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके भी फैक्टराइजेशन हम कर सकते हैं। आपने देखा होगा क्लास 9 में a² - b² कैन बी रिटन एज a + b × a - b। तो इसका सॉल्यूशन में हम इसके जीरोस कैसे पता करेंगे? पहले तो इस पॉलिनोमियल को नोट कर लेंगे।
इस पॉलिनोमियल को नोट करके हम लिखेंगे इसको परफेक्ट स्क्वायर के डिफरेंस के फॉर्म में। तो एक ब्रैकेट में हम लिखेंगे t प्लस √15 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा t माइनस √15। अब यहाँ पर दो वैल्यूज मिल जाएंगी, if t प्लस √15 इक्वल टू 0 देन t इक्वल टू √15। if t minus √15 equal to 0 then t equal to minus √15। here alpha is equal to √15 and beta is equal to minus √15। तो ये दो जीरोस मालूम हो गए। अब हम वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन में सबसे पहला काम करेंगे सम ऑफ जीरोस। एक जीरो आपने देखा √15 और दूसरा देख रहे होंगे माइनस √15। अगर इन दोनों को सम करें तो हमें मिलेगा 0। और 0 को हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू 0/1। और अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखा जाए तो फ्रॉम दिस इक्वेशन यू कैन राइट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c। a कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 1 होगा और t वाला टर्म है नहीं तो b की वैल्यू 0 और ये कांस्टेंट टर्म जो है यहाँ पर -15। अब इसको इसके फॉर्म में हम लिख सकते हैं। 0 को चाहे लिख ले -0 भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हमको रिलेशन बताना है दैट इज -b/a। तो ये सम ऑफ जीरोज मिल गया। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी लिखने जा रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एक है 0 √15, दूसरा है -√15। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा -15 और -15 को -15/1 लिख सकते हैं। तो -15 की जगह लिख देंगे c और 1 की जगह लिख देंगे a। तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा c के प्लेस पे क्या लिखेंगे, c के प्लेस पे लिखेंगे कांस्टेंट टर्म, a के प्लेस पे लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 भी उसी तरह से वेरीफाई हो गया। अब हमें सिर्फ इसका लास्ट सेंटेंस लिखना होगा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। इसको हमें कोफिशिएंट के फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे, माइनस इन प्लेस ऑफ b लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर। और यहाँ पर हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा पता किया। तो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू आई है उसको हम लिख सकेंगे c/a। तो c के प्लेस में लिखेंगे कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर। और लास्ट में लिखा जाएगा हेंस relationship between zeros and coefficients is verified।
तो ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट हमने लेकर के कंप्लीट कर दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट कर सकते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 करने के लिए हमने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया है। मैं इसका सिर्फ एक एग्जाम्पल और क्वेश्चन नंबर 2 का बताऊंगा, और ये एक्सरसाइज इसी के साथ खत्म हो जाएगी। टू फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स as the sum and product of its zeros respectively। आप ब्लैक बोर्ड पे देख रहे होंगे 2 नंबर लिखी हुई है, एक 0 है और एक √5। यहाँ क्वेश्चन में आपको दिया गया है सम ऑफ जीरोज 0 है, और प्रोडक्ट दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज √5। तो हमने आपको बताया कि पॉलिनोमियल अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस क्वेश्चन में जो सम दिया हुआ है ये वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम है, और दूसरी वैल्यू जो मालूम है वो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मालूम है। और हम यहाँ पर अगर बहुत सारे पॉलिनोमियल पूछे जाए तो एक के लिख लो और इसको अंदर ब्रैकेट के लिख लो, और के की वैल्यू, चूंकि हमको इस वाले एग्जाम्पल में सिर्फ 1 पॉलिनोमियल पता करना है तो के की कोई भी वैल्यू रख लो, 1 रख लेते हैं। तो एक पॉलिनोमियल आ जाएगा x² माइनस सम ऑफ 0 के प्लेस पे 0 लिख ले इंटू एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ 0 की जगह हम लिख लेंगे √5। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर में मिलेगा x² प्लस √5। तो ये रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो जाएगा। दिस इज योर आंसर। तो स्टूडेंट इसी फॉर्मूले का यूज करके, जो हमने ये फॉर्मूला आपको लिखवाया, इसका यूज करके इसके सारे पार्ट पता कर सकते हैं। कोई भी हर पार्ट में इसके पहला नंबर जो दिया है सम दिया हुआ है, और दूसरा वाला जो दिया है 2 जीरोज का प्रोडक्ट दिया हुआ है। तो सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज मालूम हो तो यहाँ पे वैल्यूज रख करके इस तरह से पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तैयार कर लेते हैं। स्टूडेंट, हमें उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज 2.2 समझ में आ गया होगा। इसी बेसिस पे आप एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 स्क्रीन पे है, और इसके अलावा हम कुछ आपको एडिशनल क्वेश्चंस भी दे रहे हैं। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, और इनको भी आप करेंगे। तो आज का ये क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और हम चाहेंगे कि आप हमारे इस क्लास को, इस वीडियो को लाइक करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस लॉकडाउन में भी अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सकें। जय हिंद, जय भारत।